Good morning, dear students. My name is Priyanka Gupta from Scholars Junior College. Today, we are going to discuss with the blood vessels from the chapter number 8, respiration and circulation. Today, we are going to study with the blood vessels, pulse, BP, blood pressure, or lymphatic system in this lecture. So first of all, we are going to start with the blood vessels. In the last lecture, what we have studied, we have studied till the regulation of cardiac activity. We have already studied about the internal and external structure of heart. We have also studied the conducting system of heart. So today we are going to study with the blood vessels. You know what, there are three main type of blood vessels are present in the human circulatory system, or the organism those who are showing the closed circulatory system. So we have first one is our artery. First one is our artery. Second one is vein. Third one is what? Capillary. Now what is artery? Artery is what? Artery is the type of blood vessel which carry the oxygenated blood. Veins are the type of blood vessel which carry the deoxygenated blood, and capillaries are the network of minute blood vessels. They carry both oxygenated as well as of deoxygenated blood. Okay. नाउ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आर्टरी जो होती है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द all parts of the body, and which they are usually situated deep in the body except a few like radial, branchial, femoral artery. Means arteries जो होती है वो मसल्स के बीचों बीच में, अपने बॉडी के अंदर जो मसल होते हैं उसके अंदर दिस आर्टरीज आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द मसल. ठीक है, एक्सेप्ट कुछ कुछ छोड़ के रेडियल आर्टरी जो अपनी कलाई, वॉच आप जहाँ पे घड़ी पहनते हो कलाई, वहाँ पे जो आर्टरी होती है जिससे आप पल्स रेट फील करते हो, डॉक्टर फील करते हो, वो रेडियल आर्टरी ऊपर की तरफ होती है. ब्रोंकियल आर्टरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में होती है. फेमोरल जो होती है वो पैर में होती है. तो ये सब आर्टरी जो होती है विच वी कैन फील. ठीक है. नाउ अभी वेन्स जो होते हैं, वेन्स कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम one part to the another part of the body, or you can say that ki from the body parts to the from the body parts to the heart. So जो see a portal vein, for example hepatic portal vein, differ from the other normal veins in that it start as capillary from one organ and capillaries in some intermediate organ. You know what, first arteries divide and redivide to form arteriole. I have given you the notes. वो notes में आप देखोगे arteries divide and redivide to form arteriole. Arteriole divide and redivide to form capillary. So many capillaries come together, join together, combine together to form veins. So many veins come together, join together, combine together to form venules. So many venules come together, join together, combine together to form again what? Artery, to form again arteries. Okay. Now what are the capillaries? Capillaries are the minute blood vessel. They are the network of minute blood vessel, and capillaries are more involved in the exchange of material. Capillary material exchange करने का काम करते हैं. Capillaries are responsible for the exchanging of material like oxygen, carbon dioxide, like glucose, protein, fat, mineral, iron, atom, whatever. ठीक है. You can see this is nothing but the TS of arteries, veins and capillary. TS means transverse section. TS का मीनिंग होता है ट्रांसवर्स सेक्शन. जैसे आपकी एक आर्टरी है उसको ऐसा ऐसा बारीक 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 कट किया तो जो पार्ट लिया दैट इज TS. सो दिस इज
टीएस ऑफ आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों का साथ में दिया है। आर्टरी का ये टीएस है, वेन्स का ये है और कैपिलरी का ये है। आर्टरी में क्या होता है कि सब तीनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, तीनों एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज़ होती है। तीनों में 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना और लोअर को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ऐसे 3 लेयर्स होती है, ठीक है। और अंदर जो एरिया होता है दैट एरिया इज़ कॉल्ड एज द ल्यूमेन। ल्यूमेन इज़ ब्रॉडर इन द वेन्स एंड स्मॉलर इन द आर्टरी बिकॉज आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन वाले ब्लड का जो प्रेशर होता है दैट इज़ हाई, ऑलवेज ब्लड प्रेशर इज़ हाई इन द आर्टरी, इट इज़ लो इन द वेन्स बिकॉज वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन में इतना ज़रूरी वेन का प्रेशर इतना, वेन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इतना हाई नहीं होता क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड धीरे धीरे भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी को चाहिए रहता है, बॉडी जल्दी लेती है, ठीक है। नाउ सो अभी या सो दिस आर द 3 लेयर, बीच का जो एरिया आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द ल्यूमेन। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड व्हाट कैपिलरीज। बट द wall of capillaries bear small high pressure that bear small endothelium pore or fenestrine through which blood cells can escape by the process called as diaphoresis। यहाँ पे क्या होता है, छोटे मोटे होल्स हो जाते हैं, उसके थ्रू ब्लड वेसल्स अपना मतलब देखो कैपिलरीज़ की जो वॉल होती है वो छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड अपना इस्केप करता है, भागता रहता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं डायब्रेसिस बोलते हैं। पल्स में क्या होता है, पल्स इज़ अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव ट्रैवल थ्रू द आर्टरी, आर्टरी के थ्रू ट्रैवल करती है सीरीज ऑफ प्रेशर वेव, ऐसे अप एंड डाउन वेव होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी पल्स। It is the strongest in arteries closer to the heart and gradually become weak in arteries away from heart। जो हार्ट के पास आर्टरी होती है उसमें जो कैपिलरी होती है वो थोड़ी सी नज़दीक होती है, लेकिन जो दूर होती है उसकी कैपिलरीज थोड़ी सी दूर होती है। पल्स कैन बी फेल्ट, उसके बाद वी विल डिस्कस विद द पल्स। व्हाट इज़ द पल्स, सीरीज ऑफ प्रेशर वेव दैट ट्रैवल थ्रू द आर्टरी। प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर कितना है, वो वेव की सीरीज जो होती है जो आर्टरी के थ्रू ट्रैवल करती है दैट इज़ कॉल्ड एज दी पल्स। पल्सेस मतलब दाले भी होता है लेकिन यहाँ पे पल्स का मतलब होता है pulse rate is equal to heart rate. Heart rate is in one time 70 to 72 beats per minute. सेम वे आर्टरी सेम वे अपना पल्स का भी ऐसा होता है 70 to 72 बीट पर मिनट। Now pulse is equal to heart rate, as we know. If the pulse rate is higher than normal, that condition is called as tachycardia. If the pulse rate is lower than normal, that condition is called as bradycardia. Higher में more than 100 mmHg और lower में less than 60 mmHg. Okay, now इसके बाद we will discuss with the BB, blood pressure. What is this blood pressure? The pressure exerted by the blood on the wall of blood vessel, on the wall of the on the wall of the blood vessel is called as the blood pressure. अभी now first arterial blood pressure. Arterial blood pressure is what? Now the pressure exerted by blood on the wall of artery. If the blood exert pressure on the artery, that is called as the arterial blood pressure. And pressure on the arterial wall during ventricular systole, that is called as the arterial blood pressure. जब ventricular systole हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस टाइम जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज़ 120 mmHg।
उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, जब वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होता है तो दैट इज़ 80 mmHg. mmHg is a millimeter mercury. You can see formula is given here. BP is equal to SP slash DP. BP is a blood pressure, SP इज़ अ सिस्टोलिक प्रेशर और DP इज़ अ डायस्टोलिक प्रेशर. तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल रहता है 120 और डायस्टोल मतलब जब उनमें रिलैक्सेशन होता है दैट इज़ 80. तो 120/80 mmHg. Blood pressure is normal written as 120/80 mmHg, that is called as the normal blood pressure. Now how the blood pressure increases. See, sometimes deposition of fat like cholesterol in the artery, कुछ renal disease है, kidney related disease है, कुछ emotions की वजह से hormonal changes हुए, obesity मोटापा हो गया है, blood pressure बढ़ गया है या blood pressure कभी एकदम कम हो गया है. तो ये सब भी रीजंस होते हैं ये सब भी रीजंस होते हैं हाई बीपी के. हाई बीपी इज़ कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, लो बीपी इज़ कॉल्ड एज द हाइपोटेंशन. हाई बीपी और लो बीपी, ठीक है. नाउ उसके बाद वी विल डिस्कस विद दी नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज़ 5 लीटर पर मिनट. मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ऑफ ब्लड को अपना हार्ट जो होता है वो फिल्टर कर देता है. Now, peripheral resistance depend on the diameter of blood vessels. ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इंक्रीजेज विथ एज ड्यू टू इंक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स. जैसे ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी भी इंक्रीज़ होती है और अपना ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता जाता है. डे बाय डे बीपी बढ़ती है. बीपी बढ़ने के और भी रीजंस होते हैं. समटाइम हाइयर एज, समटाइम इफ़ शी इज़ अ फीमेल, तो फीमेल में ब्लड प्रेशर इज़ हाइयर देन दी मेल. इवन इट इज़ हाइयर इन द चिल्ड्रेन, ठीक है. इट इज़ हाइयर इन द एनी ड्रामा कंडीशन. और female have slightly lower BP than male. Her age before menopause. Before menopause, female have very low BP, but after menopause, female have high BP problem. Female have high BP issue. So the BP increases in the female in after the menopause. So high BP, sometimes it depends on the viscosity of blood, age, gender, venous return. Like viscosity means if the blood is highly thickened, or it depend on the gender. Venous return depends on the sleep, emotions. If you can't get more sleep, or if you are emotional, or you are going for the more exercise, anxiety is there, so blood pressure is going to increase. Now how to measure the blood pressure? If you will go to the doctor clinic, doctor use an instrument that is called a sphygmomanometer. Okay, what is this sphygmomanometer? It is nothing but the instrument which is used to connect to the body, connect to the hands near the artery, and which is used to measure the high BP or low BP. During measurement, the person is asked in a lying or in a sleeping position. इंस्ट्रूमेंट को हार्ट लेवल के ऊपर रखते हैं और इसमें आप देख सकते हो कि एक बलून है, एक इसमें टाइटली इसमें एक मतलब इसमें आपका जो अपर आर्म है उसके तरफ एक कफ है जिसको टाइटली हम लोग अराउंड करते हैं.
उसके बाद द कफ इज़ इन्फ्लेटेड टिल द ब्रांकियल आर्टरी इज़ ब्लॉक ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो कफ होता है वो ब्लॉक हो बाहर के प्रेशर की वजह से ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है, अपनी जो भी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। और धीरे धीरे हम लोग विद द हेल्प ऑफ बलून की हेल्प से हम लोग प्रेशर देते हैं और वो बलून को हम धीरे धीरे छोड़ते हैं तो धीरे धीरे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस मशीन में यहाँ पे इसमें यहाँ पे दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज दिस एरिया इज़ फिल्ड विद द मर्क्यूरी। इसीलिए हम लोग चेक करते हैं mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये आपको बताता है कि बीपी कैसा है, सिस्टोलिक कितना है और डायस्टोलिक कितना है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ हाई बीपी इफ़ इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 120/80 or if it is going beyond 140/90 और 160/90, 150/90 और 100 डिपेंड करता है। तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में डैमेज द हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। हाइपरटेंशन में हार्ट यूजेस मोर एनर्जी फॉर पंपिंग, हार्ट ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है पंप करने के लिए। और हाइपरटेंशन समटाइम ऑल्सो कॉज द किडनी फेल्यूर और एनी अदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है अपना कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज़ व्हाट नाउ। अभी कोरोनरी साइनस, वेर इट इज़ प्रेजेंट, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी आर्टरी आर प्रेजेंट ऑन द हार्ट रीजन। हार्ट के ऊपर जो आर्टरी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज द कोरोनरी आर्टरी। तो समटाइम ये जो आर्टरी होती है दैट गेट ब्लॉक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और एनी काइंड ऑफ ऑयल और एनी काइंड ऑफ फैट, लिपिड। जब ये जाके वेसल्स में चले जाते हैं और वेसल को ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से ल्यूमेन नैरो हो जाता है, वेसल्स अंदर से पतला हो जाता है और बराबर ब्लड का सप्लाई नहीं होता, मतलब हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आता है अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस इज़ नथिंग बट द पेन इन द चेस्ट रीजन। चेस्ट में पेन होता है। अंजाइना पेक्टोरिस में जो पेन होता है वो स्प्रेड होता है नेक से लोअर जॉ से लेफ़्ट आर्म, लेफ़्ट शोल्डर। और पेन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एक्सर्शन। पेन होता है हमको एक्सर्शन की वजह से, जहाँ पे बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करती है और बॉडी को सप्लाई मीट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अपना एंजियोग्राफी। व्हाट इज़ दिस एंजियोग्राफी? एंजियो प्लस ग्राफी। एंजियोन मीन्स तो यू नो ब्लड वेसल। सो जब हम लोग कार्डियक ब्लड वेसल्स का एक्सरे लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि बाबा कहाँ कहाँ पे इसमें ब्लॉकेजेस हुए हैं। तो जो ब्लॉकेजेस हुए उन ब्लॉकेजेस को निकालने को हम लोग बोलते हैं एंजियोग्राफी। मीन्स रिमूवल ऑफ द ब्लॉकेजेस फ्रॉम द आर्टरीज इज कॉल्ड एज द एंजियोग्राफी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंजियोप्लास्टी। ठीक है। सी फिर देन उसके बाद फिर बाईपास सर्जरी करते हैं। आपने सुना है बाईपास सर्जरी? बाईपास सर्जरी इज़ ऑल्सो एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है आपको पता है कि आपकी जो रिंग फिंगर होती है, लड़के और लड़के जिसमें अंगूठी पहनते हैं रिंग फिंगर बोलते हैं, एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, वो रिंग फिंगर से एक बड़ी ब्लड वेसल जाती है जो हार्ट से होके नीचे लेग में जाती है, हार्ट के बाजू से होके लेग में जाती है। तो ये जब हार्ट को पूरा प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होता क्योंकि फ़ैट जाके डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज़ वगैरह में जो हार्ट को ब्लड का सप्लाई करते हैं, जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो वहीं से ये जो मोटी आर्टरी गई है अपने फिंगर से निकल के हार्ट के बाजू से गई है, इसको कट करके हार्ट की तरफ इसको मुड़ा देते हैं, हार्ट की तरफ इसको ब्लड प्रोवाइड कराने दे देते हैं। दैट इज़ अ बाईपास सर्जरी। अभी भिवंडी का बाईपास है ना, जहाँ पे 4 रास्ता है, बाईपास का मतलब 4 रास्ता, मतलब तो यहाँ पे बाईपास सर्जरी का मतलब होता है कि उसका रास्ता, उसको वहाँ से कट करके उसका रास्ता चेंज करवा देना। दैट इज़ अ बाईपास सर्जरी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी रिस्की प्रोसेस। हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ नेसेसरी इन द केस ऑफ पेशेंट विथ एंड स्टेज हार्ट फेल्यूर एंड सेवर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, बट इट इज़ वेरी रिस्की।
मोस्टली कोई बचा तो नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बहुत कम लोग बचते हैं, डिपेंड करता है। साइलेंट हार्ट अटैक, व्हाट इज़ दिस साइलेंट हार्ट अटैक नाउ? अभी साइलेंट हार्ट अटैक इज़ व्हाट? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्ट अटैक दैट लैक द जनरल सिम्टम ऑफ क्लासिक हार्ट अटैक, जिसमें ज़्यादा हार्ट अटैक नहीं आता, क्लासिक बड़ा वाला हार्ट अटैक नहीं आता, लेकिन कभी भी इसको होने से भी बड़ा हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ इसमें क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, हाइपरटेंशन होता है, ब्रीथ कम होती है, स्वेटिंग होती है और डिजीनेस लगता है। डिजीनेस मतलब लेजीनेस। नेक्स्ट वन इज़ अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? देखो जब डॉक्टर्स को डाउट आता है कि बंदा को या पेशेंट को हार्ट रिलेटेड इश्यू है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको इसके लिए भेजते हैं, ईसीजी के लिए भेजते हैं। ईसीजी इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो व्हाट इज़ दिस ईसीजी? तो ईसीजी इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी विच वॉज first given by the Enthoven. Enthoven was called as the father of electrocardiograph or electrocardiography. You can see in the hospital also एक मॉनिटर रहता है, और वो मॉनिटर के ऊपर क्या आपके ब्लड के प्रेशर की वेव्स दिखाई जाती है इस तरह से कि कौन सी वेव्स कितनी आ रही है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। सी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड विथ जेल फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्नल। सबसे पहले जब हम लोग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करनी रहती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? जेल अप्लाई करते हैं ऑन द चेस्ट रीजन। जेल अप्लाई करने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं चेस्ट पे, लिम्स में, यहाँ वहाँ बॉडी के ऊपर, और उसके बाद वो प्लेस करने के बाद उससे बहुत माइन्यूट सिग्नल्स भी मिलते हैं। फिर 3 टाइप के वेव्स होती हैं यहाँ पे अपना, पी वेव, फिर QRS वेव, और लास्ट वन इज़ अपना टी वेव ना। PQRS और यहाँ पे टी ना। देखो पी वेव इज़ स्मॉल, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेस लाइन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मीन्स एट्रियल रिलैक्सेशन। QRS शो करता है, QRS ये शो करता है बेस लाइन को डिफ्लेक्ट करता है, अपराइट वेव होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल्स को ये थोड़ा सा रिपोलराइज करता है। फिर उसके बाद टी वेव, मुझे ऐसे तो टी वेव जो होती है स्मॉल होती है, वाइड होती है, अपवर्डली एलिवेटेड होती है, पर ये कभी भी आता PQRST, PQRST इस तरह से आता है, कभी भी साथ में आता, फिर बीच में थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप, फिर साथ में आता, फिर थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप। ECG जो होता है दैट हेल्प्स टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटी इन कंडक्टिंग पाथवे इन द हार्ट रीजन, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चेम्बर, डैमेजेस टू कार्डियाक मसल, ब्लड सप्लाई क्यों रिड्यूस हुई, ये सब पता करता है। ठीक है, ECG इज़ वेरी गुड, आजकल हर कोई करवाता है। नेक्स्ट वन इज़ अपना लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज़ दिस लिम्फेटिक सिस्टम? lymph is nothing but the colorless fluid or liquid, or it is a clear water. It is having each and everything except RBC and platelet. बाकी इसमें सब रहेगा। fluid from intercellular spaces of the body tissue enter into the lymphatic vessels. Lymphatic vessels, lymph is nothing but the WBC, which is made up of the WBC white blood cells से बना हुआ रहता है पूरा। यहाँ पे पूरी बॉडी में हर जगह पे फैला हुआ रहता है lymph, और lymph WBC से बना हुआ रहता है white blood cells से, which is responsible for the जो बॉडी को
हेल्प करता है, जो बॉडी को हेल्प करता है स्मूथिंग करने के लिए, और जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं विच मेंटेन द इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल इज अ टाइप ऑफ lymph node. Lymphatic system is made up of lymph artery, lymph veins और lymph capillaries and also lymph node. node मतलब गांठ। तो टॉन्सिल यहाँ पे एक सबसे बड़ी नोड होती है, गांठ होती है। 5 टॉन्सिल होते हैं जनरली, जो फाइट करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस से। टॉन्सिल की इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज दी टॉन्सिलिटीज़। ओके, टॉन्सिल के सिम्टम्स होते हैं सोर थ्रोट, फीवर, स्वालोन, लिम्फ नोड दुखना, सोर थ्रोट होना, गला ख़राब होना, फीवर होना, स्वालोन होना, ये सब टॉन्सिल की वजह से, ये सब टॉन्सिल बढ़ जाने की वजह से होते हैं। So, sometimes due to the viral or bacterial infection also the tonsil get enlarged. There are various lymph node are scattered throughout the body. They are protecting the body from any mechanical injury, from any foreign particle or from any enemy, but also they are smoothing the body and they are having the capacity or power or facility. So here we have completed this chapter number 8, chapter number 8 respiration and circulation. Respiration wala part already we have completed. Today we have also completed with the circulation wala whole part. Hope you all understand. It's very easy. Just go through it. Just go through this PDF once, this chapter once, and if you will have any doubt, please feel free to ask me.